तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया। मैं मूर्ख किछ दीजै प्राणवत नानक सुन मेरे साहिबा। डुबदा पत्थर लीजै परम सन्मानयोग दीनानाथ परम कृपालु पतित पावन भगत वत्सल वालिए कुल आलम रबी ज्ञान के मुदस में जलध बबिका शब्द गुरु सर्व सांझी वालता दे रहबर रोशनी चिराग धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी पावन और मुकद्दस चरण शरण अंदर एकत्र हुए समूह गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, आप जी अत धनता दे योग हो जिन्हां ने सवेर के दीवान विच लड़ीवार राम कली की वार राय बलवंत तथा सत्य डूम आखी दी विचार सरवण करने लई हाजरी भरी है। आप जी ने पिछलेरे दीवान अंदर इस वार की चौथी पौड़ी की व्याख्या सरवण कीती सी। अज आपां पंजवीं पौड़ी की विचार इस दीवान अंदर करन दा यत्न करांगे। आओ सारे एकाग्रता बख्शिश करते हुए अपने ध्यान नूं गुर शब्द दे विच जोड़न दा यत्न करिए। अदब सहज गुर फतेह स्वीकार करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। चौथी पौड़ी होरिम गंग वहाइयै दुनियाई आख्या के क्यों नानक ईश्वर जगन्नाथ उच्च हल्दी वैन बिरक्योर। इस दी विचार सी धन गुरु नानक साहिब जी ने उल्टी गंगा वहा दिती है। गुरु अंगद साहिब जी नूं अपनी थां ते बिठा के एक आश्चर्य महाराज जी ने कौतक वरताया है ते दुनिया के मुख दे विचों ये शब्द निकले ने कि गुरु नानक साहब जी ने यह बड़ा उल्टा जिहा वखरा जिहा कार्य कीता है। नानक ईश्वर जगन्नाथ उच्च हदी वैन विरप्योर। गुरु नानक साहब महाराज जी जगत के मालिक ने जिन्हां दी जुबान तो मुख तो बहुत उच्चे बोल निकले ने। किन्ने उच्चे हद तो सीमा तो परे ते उन्हां बोलां नूं फिर उचारण करके की कीता है। माधाना पर्वत कर नेत्र बाशक शब्द रिड़क्यो। जिवें सनातन मत ने यह मन्निया है कि खीर समुंदर नूं देवतियां ते दैंतां ने रल के रिड़किया सी। गुरु नानक साहब जी दे शब्द नूं भाई लहणा जी ने उसे ढंग दे नाल रिड़किया है। उच्ची सुरत नूं उन्हां ने मधानी बनाया है। गुरु नानक साहब महाराज जी ने
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਨੇਤਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏੜਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲੇ ਕਰ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਚਿਲ ਕਿਉਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਣ ਰੂਪ ਰਤਨ ਸਨ। ਕਰ ਆਵਾ ਗਾਉਂ ਚਿਲ ਕਿਉ। ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ, ਇਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੁਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਰੁਸ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਐ ਵੇਖਾਲੀਨ ਜਿਨ ਐਵਡ ਪਿੰਡ ਠਿਣ ਕਿਓਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਐਵਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਪਿੰਡ ਠਿਣ ਕਿਉਣ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਲਹਿਣੇ ਧਰਿਓ ਛਤਰ ਸਿਰ ਅਸਮਾਨ ਤਿਆੜਾ ਛਕਿਓਣ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਛਤਰ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਤਿਆੜਾ ਛਕਿਓਣ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ। ਕਿਆੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਦੋਆ। ਛਕਿਓਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਚੰਦੋਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਮਾਹੀ ਆਪ ਆਪੈ ਸੇਤੀ ਮਿਕਿਓਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਘੋਖ ਕੈ ਸਭ ਉਮਤ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਉਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਿਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਵੋ। ਜੇ ਕਿਉਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸੁਧੋਸ ਤਾਂ ਲਹਿਣਾ ਟਿਕਿਓ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਟਿਕਿਓਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਜੋ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰ ਵਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਡੂਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਖਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘਰ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਜੜੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਿੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਗਰ ਵੀ ਉਜੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਆਸਤਲ ਸੋਇਨ ਚੌਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ ਸਹੀ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੋੜ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਚੇਤਨਾ ਆਵ ਸੁਣਾਓ। ਨਾਨਕ ਕੋੜੀ ਨਰਕ ਬਰਾਬਰੇ ਉਜੜ ਸੋਈ ਥਾਂ। ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਘਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੀ ਤੇ ਘਰ ਮਰ ਹਟ ਸਾਰ ਕੇ ਭੂਤ ਬਸੈ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਘਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਿਥੀ ਆਵੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਆਵੇ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਾ ਆਵੇ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ।
जिथे ना कोई शुभ कर्म किया जाता है, ना मालक की याद है, केवल पशुओं की तरह जीवन बतीत किया जाता है। कबीर जहाँ घर साध न सेवी है, हर की सेवा ना है, ते घर मर हट सार थे। मर हट का अर्थ है शमशान का। भूत बसे तिन माहे, उत्थे मनुख नहीं वसदे। भावें आपां कहांगे उस घर दे विच बजुर्ग ने, बच्चे ने, उस घर दे विच बच्चों के माता पिता वसदे ने, पर महाराज कहंदे बिल्कुल नहीं, सारे भूतां दे बराबर ने। भूत बसे तिन माहे, गुरु नानक साहब जी ने बड़े करड़े जे शब्द वरते। कहने कि कलयुग आखदे हो ते कलयुग लोकां दा नाम नहीं है, कलयुग युग का नाम नहीं है, समय का नाम नहीं है, कलयुग के सुभाव का बिरती का नाम है। तुहाड़ियां आदतां दसणगियां सतयुग आया होया, दुआपर आया होया, त्रेता आया होया है, ना कलयुग वरत रहा है। महाराज कहते सच जानियो, जे आप खुद कह रहे हो कलयुग का भाना है, कलयुग वापर रहा है, तो समा नहीं तुहाड़ियां आदतां दस रही ने। कली अंदर नानका जिन्ना का अवतार, इत्थे जिन्ना का अर्थ जिन है, भूत प्रेत जिसनू आखदे हैं। कली अंदर नानका जिन्ना का अवतार, पुत जिनूरा, धी जनूरी। आपां आम तौर पर व्यक्ति के वास्ते, पुरख के वास्ते वख-वख शब्द वरतते हैं, पछाण के वास्ते सिंह शब्द भी लाउने हैं, पर महाराज जी कहते ने पुत्र नूं जनूरा समझो, पुत्री नूं जनूरी आखो, पुत जनूरा, धी जनूरी, जोरू जिन्ना दा सिकदार। जोरू दा अर्थ है उन्हां दी माता इस्तरी, सिकदार दा अर्थ है सरदार चौधरी। जिस माता ने पुत्रां ते पुत्री नूं जन्म दिता है, किहड़े पुत्रां नूं? जो जिन की तरह ने, जो माड़े सुभाव वाले ने, वो सारियां दी सरदार बनी हुई है। उसदा करके परिवार प्रफुल्लित होया, परिवार का विस्तार होया। ते सतगुरु जी कहते हैं गुरु अंगद साहब जी खडूर साहब दे विच आए ने, ते उन्हां दे आउण दे नाल खडूर साहब नगर वस गया है। फेर वसाया फेर आण, फेर आण का अर्थ आप जी थोड़ा जिहा समझ लिओ। फेर दे रारे नूं औंकड़ है, इसका उच्चारण भावें आपां फेर करने आ, पर जदों आपां इसके अर्थां दे वल झाल मारांगे, वेखांगे, तो इसका अर्थ होएगा फेरू। फेरू गुरु अंगद साहब महाराज के पिता जी का नाम है, जिन्हां दा पूरा नाम बाबा फेरूमल जी है। गुरु अमरदास महाराज जी की उस्तत करदियां भी पाटा भट्टा ने अपनी बाणी दे तेज भान शब्द वरतिया, ते गुरु अंगद साहब महाराज जी के पिता जी का नाम भी फेरवान करके आया। बाबा फेरू जी नूं पता नहीं होगा कि जेड़ा मेरा पुत्र दुर्गा देवी दियां भेटावां गाउंदा है, जेड़ा दुकान ते हट्टी ते बैठ के सौदा वेचदा है, एक दिन संसार दे विच इन्ना को प्रसिद्ध हो जाएगा, इन्ना को मशहूर हो जाएगा कि लोग मेरे नाम दे नाल उसनूं नहीं जानणगे, सब मैनू उन्हां दे नाम दे नाल जानिया जाएगा। ते इत्थे जदों बाबा सत्ता ते बलवंत जी ने हजूर की उस्तत की, ते हजूर ने उत्थे गुरु अंगद साहब जी के नाम के नाल बाबा फेरू जी का नाम भी लिया। कहन लगे बाबा फेरू जी के पुत्र सतगुर ने खाडूर, ये खडूर नगर आके वसाया है। ते वसाउण दे नाल की वस्तुआं लैके आए, कि उन्होंने कोल कोई बहुत सारा धन सी कि उन्होंने लोगों के धन वंड दिता ते लोग सुखी हो गए, कि उन्होंने कोई इमारत की लकड़ लियाई सी कि सारे लकड़ वंड दी कि अपनियां इमारतां अपने घर के दरवाजे तुसी बहुत खूबसूरत सुंदर बना लो। बिल्कुल नहीं। बाबा जी कहते हैं नगर नूं वसाउण दे वास्ते उन्होंने बहुत सारा धन नहीं लिया, उन्होंने इमारती लकड़ नहीं लियाई, जां इमारत नूं बनाउण दे वास्ते कोई समग्री भी नहीं लियाई। की लियांदा? जप तप संजम नाल तुद, होर मुच गुरूर, नाल जप लैके आए,
नाल अपने तप लैके आए, घालना लैके आए, संजम। मैं आखिरी अर्थ पहला कर देवां। जप दा अर्थ हुंदा है रटन करना, उचारण करना। पर गुरमत की एक विशेषता, विलक्षणता है कि गुरमत जप दा अर्थ केवल रटन करना नहीं करती। जप दा अर्थ गुरबाणी दे विच सिमरन आवेगा, मालक की याद, मालक का चेता आवेगा। दूजे धर्मां नूं आप जी पढ़ोगे तो उन्हां धर्मां दे विच जप दा अर्थ केवल रटन ही है, होर अर्थ नहीं है। सनातन मत ने 3 तरह के जाप मन्ने ने। सब तो पहला जप है वाचक जप। वाचक जप का अर्थ हुंदा है अपनी जुबान के नाल उच्ची उच्ची किसी मंत्र का जाप करना, रटन करना। जेड़ा मंत्र जपण दे नाल अपने कन्नां नूं भी सुनाई देवे ते जो लागे बैठा होवे उस नूं भी सुनाई देवे, उस नूं कहा जाता है वाचक जप। दूजा जप है उपांश जप। उपांश जप का अर्थ है किसी मंत्र का जाप किया जाए, रटन किया जाए ते उच्ची उच्ची ना बोलिया जाए। उस मंत्र का रटन करने वक्त केवल बुल हिलन, ये होठ हिलन ते लागे बैठे हुए नूं वो आवाज़ सुनाई ना दे, केवल हौली हौली आप ही जपना है। उस जप का नाम है उपांश जप। तीजा जप है मानस जप। मानस जप का अर्थ है कि केवल मन दे विच मंत्र का जाप करना है, रटन करना। मन तो ही मानस बनिया। शायद आप जी नूं ज्ञात होवे कि जिहड़ा मनुख शब्द है, मनुख शब्द भी मन तो ही बनिया। जिहड़ा मन रखता है, जिहड़ा विचार रखता है, जिहड़ा फुरने रखता है, विवेकता रखता है, चंगे मंदे की परख की पछाण रखता है, उसनूं क्या कहना है कि मनुख है। ते जिस दे कोल मन नहीं है, विचार ही नहीं, कोई फुरना ही नहीं, कोई भाषा ही नहीं, कोई ज्ञान ही नहीं है, उसनूं क्या कहना है पिछे चला गया पास विच, ये पशु है। पर महाराज जी कहते ने जप तप संजम नाल तुध। गुरु अंगद साहब जी दे नाल ये जप भी है। केड़ा जप है जिसनूं महाराज कहते ने जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर आया। कहो नानक हम नीच करना, शरण परे की राखो शर्मा। मैं तां इन्ना हीन हाँ, मैं ते इन्ना कंगाल ते गरीब हाँ, मेरे को जप भी कमाया नहीं गया। मेरे को कोई घालना भी नहीं है, तप भी नहीं है। अपने मन के उत्ते संजम भी कोई नहीं, रोक भी कोई नहीं। विकार आ जाए तो मैं विकार दे विच ही खचित हो जाना। जे कोई अगों उच्चा बोलने वाला मिल जाए तो मैं उस तो भी उच्चा बोलने लग पैना। सगों मेरी शब्दावली भी बदल जाती है। शब्दावली भी धर्म वाली नहीं रही, सभ्य नहीं रही। महाराज जी कहते हैं मैं ये कमाया नहीं। ये वक्री गल है कि सतगुरु जी की ये निर्माणता है, निम्रता है। वैसे सतगुरु जी गुणा के खजाने ने। महाराज जी के कोल इन्ने कुछ गुण ने कि संगतां नूं वंडदे पए ने। पर किहड़े जप दा खंडन गुरबाणी दे अंदर कीता है। हजूर कहते ने जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत वख्यान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग मन मध्य फिरिया। शरीर कटाए हौमै कर राती, वर्त नेम कर बन भांति। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। महाराज ने सारियां का खंडन करके ये क्या है कि परमात्मा के नाम के बराबर वो जप नहीं, वो तप नहीं। शरीर को कटाना भी परमात्मा के नाम के बराबर नहीं है। क्यों क्या? क्योंकि कांशी दे विच बनारस दे विच पुराने समय तो एक आरा रखा होया सी। उस आरे दे नाल लोग जाके अपने तन नूं कटा लेंदे सी ते अपने तन नूं कटा के ये समझते सी कि मैनूं हुण मुक्ति मिल जाएगी। महाराज कहते तन नूं भावें कटा लवीं, तन दे विचों खून तां निकल जाएगा, मिज तां निकल जाएगी, नाड़ां तेरियां वखरियां हो जाणगियां,
पर सच जानी कि तेन मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। ये गुरु अर्जन साहब जी के बोल ने कि शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम कर वो भांति, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। गुरमुख दा ते गुरु दे वल मुख करके गुरु दे राही गुरु दे द्वारा जे तू एक बार नाम नूं जप लवे, जे तेनू चेता आ जावे तां महाराज जी कहंदे ने एक चित जे एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। मैं तेनू ये नहीं आखदा कि तू एक थां ते बैठ जा ते कई सालां दे तक बैठा रह। इको गल महाराज ने आखी है कि केवल एकाग्र चित हो के ध्यान दे नाल एक छिन दे नाल ही परमात्मा कह दे। एक छिन दे विच किया होया परमात्मा, परमात्मा दा रटन, परमात्मा दी याद तेनू काल दी फाही तो बचा लवेगी, मौत दे डर तो बचा लवेगी। पर इत्थे चेता रखना किते ये ना सोच लई आपां नितनेम दीआं बाणियां पढ़नियां छड़ देणियां ने, त्याग देणियां ने। कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने यह कहा है कि केवल एक चित्त दे विच हो के एकाग्रता धारण करके आपां इक्को वार ही परमात्मा का नाम उच्चारण करना है तो गल बन जानी है। बिल्कुल नहीं। पूरा जीवन परमात्मा नूं याद करना इस वास्ते है कि एक छिन वो बन जाए, एक पल वो बन जाए जिस पल दे विच मालिक की याद स्थिर हो जाए, वो परमात्मा सानू प्राप्त हो जाए। वैसे इत्थे बाबा जी कहते हैं गुरु अंगद साहब महाराज जी के कोल ये जप है, तप भी है। केड़ा तप? ये तन नूं कष्ट देने वाला तप है। बाबा फरीद साहब जी के थोड़े जे बोल आप जी के नाल साझे करने कि गुरबाणी ने केड़ा तप मन्निया, सानू केड़ा तप करना चाहिए है। बाबा जी कहते हैं कि तन तपै तनूर ज्यों, बालन हड बलन, पैरी थकां सिर जुलां, जे मूँह पी मिलन। उन्होंने एक तंदूर की उदाहरण दी है। कहते ने जे तंदूर दे विच प्रशादे पकाने होण ते पहला वो तंदूर बड़ा तपदा है, बहुत गर्म हुंदा है, तापमान बहुत वध जाता है, उसके सेक के नाल ही रोटियां प्रशादे पकते हैं। किन्ना उसके अंदर सेक होवेगा जिस दे नाल प्रशादे पक जाते हैं। बाबा जी कहते ने मेरा तन तंदूर की तरह भावें तप जावे सड़ जावे, पर मैं एक गल कहांगा कि मैं अपने तन नूं बालन की तरह उस तंदूर दे विच भी साड़ देवां, राख कर देवां। ते जे मेरे पैर लथ जान, नालों कट्टे जान, ते मैं जे थक के अपने सिर दे भार हो के भी परमात्मा दे रस्ते ते तुर के मार्ग ते चल के परमात्मा नूं जा के मिलां ते अगों हस के परमात्मा मैनूं गल वकड़ी दे विच लै लवे ते मैं समझांगा मेरा शरीर कटाया होया परवान है, मेरा तन एक तंदूर दे विच तपिया होया ठीक है, मैं मन लवांगा। तन तपै तनूर ज्यों, बालन हड बलन, पैरी थकां सिर जुलां। जुलां दा अर्थ जाना चलना, पैरी थकां सिर जुलां, जे मूँह पिरी मिलन। पिरी दा अर्थ है मालिक, जो परमात्मा मैनूं मिल जावे। पर बाबा जी फिर कहते ने कि दुनिया के लोग किते ये ना कहण कि बाबा फरीद साहब जी भुलेखा लग गया, उन्होंने कोई भरम सी, इन्नी उन्होंने तपस्या की, इन्ना उन्होंने जीवन सी, ते संसार नूं की उपदेश दे के चले गए कि अपने तन नूं तंदूर दे विच साड़ देना चाहिए। बाबा जी कहते मैं तां ये गल कीती सी कि जे इन्हां कर्मां दे नाल परमात्मा मिल जाए तां करने चाहिए ने। जे परमात्मा इन्हां कर्मां दे नाल मिलदा ही नहीं है तो क्यों अपने तन नूं तपाई जा रहे हैं, क्यों साड़ी जा रहे हैं। तन ना तपाए तनूर ज्यों, अगला श्लोक फिर उच्चारण किया। तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन हड ना बाल, ते अपने तन नूं बालन की तरह ना बाल। जिवें लकड़ियां नूं आपां चुल्हे दे विच डा के बालने आ जां तंदूर दे थल्ले डाउने आ, बाबा जी कहते इस तरह ना बाल, इस तरह दुख ना दे, अपने तन नूं तंग ना कर, कष्ट ना दे।
तन न तपाए तनूर ज्यों बालन हड न बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया, फेड़िया नरक बिगाड़िया। तेरे सिर ने की बिगाड़िया, तेरे पैरों ने तेरा की बिगाड़िया। वो पैर तो सगों परमात्मा के रस्ते दे वल लैके जाते हैं। इस सिर दे विच तां तेरा दिमाग है, तेरे फुरने ने, तेरी सोच है, विचार है। इस विचार दे नाल ही परमात्मा दा तू सिमरन करदा है। ते इस सिर ने ते पैरों ने तेरा की बिगाड़िया है, जिस करके तू इन्हां नूं कष्ट देना है, दुख देना। सिर पैरी क्या फेड़िया, अंदर पिरी निहाल। अगे जग्यासु ने आख्या कि मैं इस करके दुख देना हाँ कि परमात्मा मिल जाए। अगों बाबा जी कहते जिस परमात्मा नूं तू मिलना है, वो परमात्मा ते तेरे हिरदे दे विच वस रहा है, ते तू बाहर की लभदा फिर रहा। अंदर पिरी निहाल। बाबा जी का एक सलोक होर है, वो सलोक भी तप के संबंध दे विच ही है। मैं अर्ज कर रहा, जप तप संजम नाल तुद होर मुच गुरूर। गुरु अंगद साहब महाराज जी के नाल ये शुभ गुण ने। जप है, तप है, संजम है, पर किहड़े जप की गल है, किहड़े तप की गल है, किहड़े संजम की गल है जो गुरु अंगद साहब महाराज जी के नाल ने। जिन्हां गुणां दा करके खडूर साहब नगर वस गया है। बाबा फरीद साहब जी कहते ने कि पाड़ पटोला धज घरी, कमलड़ी पहरियो, जिनी वेसी शह मिलै सही वेश करियो। इत्थे इस दे आखिरी अर्थ समझ लियो। पाड़, पाड़ दा अर्थ है पाड़ के, पाड़ पटोला, पटोला दा अर्थ है इस्तरी दे, जनानी दे सिर दे उपर लिया जान वाला कपड़ा। पाड़ पटोला। धज करी, धज दा अर्थ है लीरां बनाउणियां, करी दा अर्थ है करना। पाड़ पटोला धज करी, कंब लड़ी पहरियो, ते मैं अपने उस पट नूं, कपड़े नूं लीरां लीरां बना के कंबली जी बना लवां। कंबलड़ी पहरियो ते अपने तन ते ओढ़ लवां, पा लवां। जिनी वेसी शह मिलै सही वेश करियो। कहंदे जिस वेश दे नाल, भेद दे नाल, पहरावे दे नाल, लिबास दे नाल ओ खुदा मिल जाए, मैं वही लिबास धारण कर लवां। फिर बाबा फरीद साहब जी कहते ने कोई बंदा ये ना सोच लवे कि बाबा फरीद साहब तन तो नंगा हो गया है, ते तन तो नंगा हो के उसने अपने कपड़े दियां लीरां बना लईयां ने ते कमली जी तैयार करके शरीर दे उत्ते पाई फिरदा है। बाबा जी कहते ने पाड़ पटोला धज घरी, कंबलड़ी पहरियो, जिनी वेसी शह मिलै सही वेश करियो। अगला उन्होंने श्लोक फिर उच्चारण किया, काए पटोला पाड़ती। क्यों वो तू अपने कपड़े नूं पाड़ लिया, क्यों लीरां बना लईयां? तेनू किसने आख्या सी, किसने सिक्ख्या दिती सी? काए पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरे, नानक घाली बैठिया शह मिलै, जे नीयत रास करे। जे तेरे मन की नीयत रास हो जाए ना, मन तेरा साफ ते शुद्ध पवित्र हो जाए, तो परमात्मा तेनू हिरदे घर दे विच ही मिल सकता है। ये कोई औखी गल नहीं है। तू कष्ट क्यों दे रहा? हजूर कहते जप तप संजम नाल तुद होर मुच गुरूर। तप की इत्थे गल कीती है, पर महाराज कहते जेड़ा तप तू करदा है, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फिर अवतार। ते महाराज कहते उस तप दे नाल तां तैनू भी कोई लाभ नहीं होया। बाबा कबीर साहब कहते ने कि क्या जप, क्या तप, क्या व्रत पूजा, जाके हृदय भाऊ है दूजा, जिस दे हिरदे दे विच दूजा प्यार है, प्रेम है। एक पासे परमात्मा नूं भी जपी जा रहा, पुकारी जा रहा, दूजे पासे ये भी मन दे विच भरम जिहा, शंका जिहा है कि परमात्मा ते ना होर किसी ने वेख्या, ना मैं ही वेख्या है, तो की पता वो परमात्मा मिले या ना मिले। एवें अपनी मौज भी खराब कर रहे हैं, अपना जीवन व्यर्थ गवाई जा रहे हैं, जिंदगी लंघती जा रही है। तो बाबा कबीर साहब जी कहते जेड़ा तप तू कर रहा, जेड़ा जप तू कर रहा, मैं तेनू वादे दे नाल कह देना कि इस तरह परमात्मा नहीं मिलता। क्या जप, क्या तप, क्या व्रत पूजा, जाके हृदय भाऊ है दूजा। अरे जन
मन माधव स्यों लाई है, चतुराई ना चतुर्भुज पाई है। चतुराई के नाल परमात्मा नहीं मिलता, उस माधव के नाल जो माया का पति है, जिसने माया नूं सिरजिया पैदा किया है, उस दे नाल स्नेह बना। जप तप संजम नाल तुद, गुरु अंगद साहब महाराज जी के नाल संजम भी है। संजम दो शब्दों तो मिल के बनया है। एक शब्द है स्वयं। स्वयं का अर्थ है अपने आप, अपने उत्ते। जम का अर्थ है रोक लाउणी, काबू पाउणा। अपने मन के उत्ते काबू पाउणा, रोक लाउणी। जदों मन दे विच कोई मलीन फुरना आवे, जदों मन दे विच इह ख्याल आवे कि संगत दे विचों उठ के होर थां ते जा, चित नहीं करदा पिया, दिल नहीं लगता पिया, उदों ही तू होड़ा लाई, मन के उत्ते तू कोई प्रहार करी। जिवें धन गुरु नानक साहब जी कहते ने, जत पहारा। पहारा दा अर्थ है दुकान। तू जत नूं, तू ब्रह्मचारी नूं, तू इस नूं दुकान बना लै। धीरज सुनियार ते धीरज नूं सुनियारा बना लै। जत पहारा, धीरज सुनियार, अहरण मत। आहरण का अर्थ है वदान। वदान ते आप जी ने वेख्या होवेगा, जिस उपर लोहे नूं रख के सट मारी जाती है, कई बार लोहे नूं वड्डिया भी जाता है, कट्टिया भी जाता है। ते वदान का अर्थ अरण भी है, जां कह लीए अरण का अर्थ वदान है। जत पहारा, धीरज सुनियार, अरण मत। तू अपनी मत नूं वदान बना लै, अरण बना लै। वेद हथियार। वेद का अर्थ है ज्ञान, हथियार का अर्थ है हथौड़ा। ते तू अपने हथ दे विच ज्ञान का हथौड़ा फड़। जदों मन दे विच कोई मलीन फुरना आवे, ज्ञान का हथौड़ा मार के उत्थे ही रोक दे, फुरने नूं दब दे, तां जो तेरा जीवन ना खराब होवे। गुरु अंगद साहब जी के कोल एक ज्ञान का हथौड़ा है। जदों भी कोई फुरना आउंदा है, उस वेले नाल ही नप्पिया जाता है। साडे मन दे विच मलीन फुरने हो सकते हैं, पर सतगुरु वो शख्सियत है, वो हस्ती है, जिन्हां दे मन दे विच ये मलीन फुरने आउंदे ही नहीं। भावें सतगुरु जी ने कई बार बड़ी निमरता दे विच, निर्माणता दे विच ये कहा है कि विकार मेरा खैड़ा नहीं छड्डदे, पर यह ना समझ लेना कि सतगुरु जी के उत्ते विकार हावी होंदे होणगे, प्रभाव पाउंदे होणगे। हजूर कहने जप तप संजम नाल तुद। गुरु अंगद साहब जी के नाल ये शुभ गुण ने। होर दा अर्थ है बाकी जिहड़ा संसार है, मुच गरूर। मुच दा अर्थ है बहुत, गरूर दा अर्थ है अभिमान, अहंकार। बाकी दुनिया के नाल ये गुण नहीं हुंदे, केवल अहंकार ही है। ते अहंकार भी व्यर्थ जिहा है। धन का अहंकार, मान वडियाई का अहंकार, सुंदरता का अहंकार, सुंदर वस्त्रां का अहंकार, किसी चीज़ नूं जानन का, ज्ञान का अहंकार, यही अहंकार मनुख नूं चैन दे नाल बैठन नहीं दिंदा। ते सतगुरु तां बाणी दे अंदर कई बार कहंदे ने, मैं हैरान उन्हां मनुखां तो नहीं हुंदा जिहड़े गुण दा करके अभिमानी हुंदे, अमीरी दा करके अहंकारी हो जाते हैं। अमीरी दा करके अहंकारी हो जाना सुभाविक है। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी लाहौर की धरती ते जाते ने, ते उत्थे एक अमीर शाहूकार है जिसका नाम है दुनी चंद। दुनी चंद दे कोल इन्ना धन है, इन्ना पैसा है कि उसने घर दे उपर 7 झंडे लाए हुए थे। 7 झंडियां का मतलब है कि मेरे को 7 लाख रुपया है। पुराने समय के अंदर किसी नूं दिखाउण दे वास्ते घर दे उपर जे एक झंडा लगा हुंदा सी, उसका मतलब हुंदा सी इस दे कोल 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए की कीमत भी बहुत ज्यादा होया करती सी। ते जे गुरु नानक साहब जी नूं 20 रजतपन मिले ने, ते 20 रजतपन भी कोई थोड़े नहीं। उन्हां दी गिणती भी अज दे हज़ारां रुपयां दे विच होवेगी। जे दुनी चंद दे कोल 7 लाख रुपया है, इसका मतलब है लाहौर के बहुत वड्डे वड्डे अमीरां दे विच शुमार है।
उसकी गिणती हुंदी है। गुरु नानक साहब जी गए, जदों उपर नज़र मारी, ध्यान मारिया, 7 झंडे वेखे ते दरवाजा खड़का के कहते ने कोई शाहूकार दा घर है, कौन इत्थे रहिंदा है? अगों उसकी पत्नी निकल के आई, कहन लगी मैं रहिंदी आ ते इस घर दे विच मेरे पति जी रहिंदे ने। धन गुरु नानक साहब महाराज जी एक छोटी जी सूई दे के अगे चल पए। जाण दे वक्त केवल इन्नी गल आखी सी कि जदों दुनी चंद घर आए, ये सूई दे के कह देना दरगाह दे विच आपां सूई वापस लै लवांगे। जदों गुरु नानक साहब ने यह बोल कहे, ना ते दुनी चंद शाहूकार की पत्नी नूं इन्नी सुरत है, इन्नी संभाल है कि वह कह सके महाराज जी सुरत दरगाह ये सूई दरगाह दे विच किवें दे सकते हैं। दुनी चंद शाहूकार आया तो जदों उसनूं समा मिलिया, इकल्ली सोचदी रही कि परलोक दे विच ये सूई किवें देवांगे। फकीर ने, धर्मी मनुख ने, जे आपां वचन तो झूठे होवांगे तो फिर तां ये साडे वास्ते पाप वाली गल है। इकल्ली बैठी सोच रही है, जदों इस शरीर का अंत हो जाएगा सानू तो यह भी नहीं पता लगेगा कि साडी आत्मा कित्थे चली जानी है, सूई किवें नाल जावेगी। ये संसारी वस्तुआं भी सुनिया कोई नाल नहीं जांदियां। अपनी पति नूं आखदी है कि धन गुरु नानक साहब महाराज जी जो सूई तुहानूं दित्ती है, ये सूई दरगाह दे विच नहीं जा सकती। अगों दुनी चंद के मन दे विच होर कई फुरने आ गए कि जो फकीर आए हुए ने मैनूं कोई उपदेश दे के गए, उन्होंने मेरे घर दे वल झात मारी है कि इसने घर के उपर 7 झंडे लाए हुए ने, अमीरी का यह चिन्ह है, अमीरी का यह प्रतीक है, तो यह तो मेरे नाल नहीं जाएगा। वो सूई लैके फिर महाराज के कोल चला गया, कहने लगा सतगुरु जी मेरे कोलों बड़ी बड़ी गलती हुई है, अपराध होया है, मैं अहंकार का मान करके अपने घर के उत्ते 7 झंडे लाए हुए ने, खिमा कर दो, अज तो बाद मैं अपने घर नूं धर्मशाला ही बना देना है, लोड़वंदां दे विच सारा धन वंड देना है। धन गुरु नानक साहब महाराज जी का भाई दुनी चंद सिख बनया, लाहौर का हजूर ने प्रचारक थापिया, ड्यूटी ला दी कि जिहड़ी समझ तेनू प्राप्त हुई है, जिसनूं हजूर कई बार कहते ने गुरा एक देह बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई, ओही समझ ओही सिक्ख्या अज गुरु नानक साहब ने भाई दुनी चंद नूं दित्ती है। अगों उसने भी दूजियां नूं सिक्ख्या देनी आरंभ की है। ते महाराज जी कहते ने जाप तप संजम नाल तुद होर मुच गुरूर, दुनिया के लोगों के कोल केवल गरूर है, अहंकार है, अभिमान है, पर महाराज जी कहते सतगुरु जी के कोल केवल गुण ही गुण ने। संखेप दे विच विचार करके पौड़ी की संपूर्णता करांगे। लाभ विना ही मानसा ज्यों पानी बूर, महाराज कहते दुनिया के लोगों का विनाश हो जाता है, अंत हो जाता है। लभ ते लोभ दे विच अंतर है, फर्क है। लभ शब्द जुबान के नाल संबंध रखता है, चस्कियां के नाल खान के नाल संबंध रखता है, पर लोभ शब्द का अर्थ है पदार्थां का, वस्तुओं का, धन का, वस्त्रां का लोभ होना, मान इज्जत का लोभ होना। पर लभ शब्द केवल जुबान की चस्कियां के नाल ही संबंध रखता है। इस लभ का करके मनुखों का विनाश हो जाता है। कई बार महाराज कहते ने कि मैनू तो समझ आ गई है, खांदियां खांदियां मोह कट्ठा पहनंदियां सब अंग, त्रिग तिना का जीविया जिन सच ना लगो रंग। उन्हां दा जीना त्रिकाल दे योग है, जिन्हां परमात्मा का अजे तक रंग नहीं लगा। इन्नी जिंदगी गुजर गई है, खांदियां खांदियां पदार्थ मुंह कट्ठा हो गया। कट्ठा का अर्थ है जर्जरा हो गया, दंद निकल गए, हुण स्वाद उस तरह का नहीं होंदा। पहला पदार्थ वेखने पैंदे ने कि मेरे खान दे लायक है, योग है या नहीं है।
ये ज़्यादा गर्मता नहीं है, ज़्यादा ठंडाता नहीं है, ज़्यादा सख्तता नहीं है कि जे मैं खा लवांगा पच जाएगा ना नहीं पचेगा। पहला खाण को सोचना पैंदा, विचारना पैंदा है। हजूर कहते खांदियां खांदियां मूँह कट्ठा, मेरा मूँह कट्ठा हो गया। पर दुनियादार लोग अजे तक समझे नहीं। इस लभ दा करके, जुबान के चस्कियां दा करके इन्हां दा विनाश हो जाता, खत्म हो जाते हैं। लभ विनाहे, विनाहे का अर्थ है विनाश होना। मानसा किवें जो पानी बूर, जिवें पानी खराब हो जाता है, गंदला हो जाता है। जिहड़ा सरोवर बहुत खूबसूरत लग रहा पानी का करके, पानी की सुंदरता का करके, जे पानी बहुत ज़्यादा शुद्ध है, साफ है, तो उस नदी नूं बहुत लोग वेखण दे वास्ते आउंदे ने। किनारे खलो के कोई चित्र बना रहा, कोई उत्थे वातावरण का आनंद लै रहा, ते कोई उत्थे दिन गुजारन दे वास्ते आया होया। पर जे उही नदी, जे उही सरोवर गंदा हो जाए, उत्थे कोई नेड़े नहीं आउंदा, बदबू आ रही होवे ते लोग कहते तू भी ना उत्थे जाए, मैं भी जाके उत्थे पछता रहा। गंगा नदी नूं जिसनूं लोग बहुत पवित्र ते पावन समझते हैं, आप भी कदे जाके वेखना। पुराना समा सी जदों लोग समझते सी कि मैं उस नदी ते जाके आया, पानी बड़ा उहदा साफ है, शुद्ध है। पर अज जाके वेखोगे इन्ना पानी गंदा है, इन्ना मलीन है कि उसका जे पानी कोई पी लवे तो कई रोग लग सकते हैं। गंगा अज पावन नहीं रही, अज गंगा का पानी साफ नहीं रहा। विच नारियल सुट के, संदूर सुट के, हवन की समग्री सुट के, होर कई तरह दीयां वस्तुआं सुट के पानी नूं इन्ना दूषित कर दिता गया है कि वह वातावरण भी नहीं रहा। इत्थे बाबा जी ने शब्द वरत्या, लभ विनाहे मानसा ज्यों पानी बूर। बूर का अर्थ इत्थे जाला है। जाला तो आप जी ने वेख्या ही है, जदों पानी बहुत समय तक खलोता रहे, साल 2 साल, तो पानी दे विच जाला पैदा हो जाता है। तो उस जाले नूं जे ना नाश किया जाए, खत्म किया जाए, तो पानी के विचों बदबू आउण लग पैंदी है, उसकी सुंदरता भी खत्म हो जाती है। महाराज कहते इस तरह ये मनुख लभदा करके सड़ते जा रहे हैं, नाश होंदे जा रहे हैं। पर सतगुरु की हस्ती उस तरह टिकी हुई है, नवा निरोआ है। वरे दरगाह गुरु की कुदरती नूर। सतगुरु जी की दरगाह तो ये नूर झड़ रहा है। वरे दरगाह गुरु की कुदरती नूर। गुरु जी की दरगाह दे विचों कुदरती नूर, ये रोशनाई झड़ रही है। किवें? जिवें मींह वरदा है, जिवें बारिश हुंदी है, इस तरह नूर दिन नित प्रति झड़ता जा रहा है। जित सुहाग न लभई तुम ओ ठरूर। ठरूर का अर्थ है ठंडा होना। आप पंजाबी का एक पुराना शब्द वरतते सां कि पानी बहुत ठरिया होया। ठरिया का अर्थ है ठंडा, पानी बहुत शीतल है। सतगुरु जी का सुभाव इन्ना क शीतल है जिवें कोई समुंदर होंदा है। खात ना लभई, पर उस समुंदर का कोई महाराज जी कहते डूंघाई का पता नहीं है, गहराई के बारे किसी को कोई ज्ञान ही नहीं है। जे तुसो खात ना लभई, खात का अर्थ इत्थे उसका अंत है। जिवें आपां जप बाणी के अंदर भी शब्द पढ़ते हैं, सुने है खात होवे असगाह। खात का अर्थ ये साडा अंग नहीं, हथ नहीं। हथ का अर्थ उत्थे है गहराई का अंत। जित सुहात न लभई, सतगुरु जी की डूंघाई के बारे ज्ञान नहीं है, अंत नहीं पा सकते। तुम ओ ठरूर, तुम इस तरह की ठंडक का, शीतलता का मालक है, पर तेरे विच है कि जिस करके आप अंत नहीं पा सकते। नाउ निध नाम निधान है, तुद विच भरपूर। नाउ का अर्थ इत्थे गिनती वाला नाउ है। निध का अर्थ है खजाना, निधान का अर्थ भी खजाना ही है। तुहाडे विच संसार के पदार्थों के नाम खजाने ने। नाम निधान है तो केवल दुनियावी वस्तुआं ही नहीं, नाम का खजाना भी है। तुद विच भरपूर, किन्नी क मात्रा दे विच?
कि ढेर लगा होया जां मुकणी वाला। महाराज कहते तुध विच भरपूर भरिया होया बड़ा भरपूर है, ना तो कदे खत्म होंदा है ना कदे समाप्ति होंदा है। ये धन अखुट ना निकुटै ना जाए, पूरा सतगुर दिया दिखाए। ये धन का कदे अंत नहीं होंदा, खत्म ही नहीं होंदा। निंदा तेरी जो करे सो वंजै चूर, वंजै नरत हो जाता है। चूर का अर्थ है टुकड़े टुकड़े हो जाना, खत्म हो जाना। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ जी की निंदिया करता है, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਬੋਲਦਾ है, महाराज जी कहते वो चूर चूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसे करके भगत नामदेव साहब जी कहते हैं मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, भावें मेरी कोई निंदिया करी जाए, सगों मैनू तो लाभ होंदा, फायदा होंदा है। जदों कोई मैनू ये आखदा है कि बड़ी नीवी जात वाला है, तो सगों मेरा अहंकार होर दूर हो जाता है। मैं सोचदा चंगा होया जे परमात्मा ने मैनू नीवा बनाया, मैनू इस अहंकार तो बचा लिया है। जे मैं ब्राह्मण कुल दे विच हुंदा, जे खतरी कुल दे विच हुंदा, की पता हो सकदा सी मैं भी इन्हां दी तरह अहंकारी हो जांदा। मालक ने मैनू निमरता दी गरीबी दी दात बख्शिश कीती है। महाराज कहंदे इस तरह दी गरीबी मैनू चाहिदी है। गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेल ठारी। भगत नामदेव साहब जी कहते निंदाओ निंदाओ मोको लोग निंदाओ, निंदा जन को खरी प्यारी। लोकां नूं निंदिया चुभदी है, तंग करदी है, दुख देती है। निंदिया भावें मूँह ते कीती जावे, भावें पिठ पिछे कीती जावे, मनुख अपनियां गल्लां सुन के बड़ा हैरान भी हुंदा है ते खुश भी हुंदा है। जे उस्तत कीती जावे बड़ा खुश हुंदा है, जे निंदिया कीती जावे ते मनुख रात नूं भी चैन दे नाल सौंदा नहीं कि की मेरे विच सचमुच ये कमी है, घाट है। मैं किस तरह का कोई काम ही नहीं किया, कार्य ही नहीं किया, ये मैनू क्यों कह रहा। मैं सवेरे जाके जरूर इसनूं पुछना है, रात चैन नहीं हुंदा। भगत नामदेव जी कहते तेरे दास नूं तेरे सेवक नूं ये निंदिया प्यारी लगती है। निंदाओ निंदाओ मोको लोग निंदाओ, निंदा जन को खरी प्यारी। ते आपां पुछीए भगत जी तुहाडा निंदिया दे नाल संबंध की है, रिश्ता की है जिस करके तुहानूं बड़ी प्यारी लगती है। कहंदे निंदा बाप, निंदा महतारी, महतारी का अर्थ है माता। इसनूं महतारी करके उच्चार नहीं करना, इसनूं महतारी करके उच्चारण करांगे। इसका अर्थ है माता। निंदिया मेरा बाप लगता है, पिता लगता है। निंदिया मेरी माता क्यों? कहंदे ने माता पिता सिखाउंदे ने, जन्म तो लैके साम संभाल करते हैं, पालते हैं, गुणा के नाल निवाज देते हैं, बोलना सिखाते हैं, तुरना सिखाते हैं। इस करके मैं कहना निंदा बाप निंदा महतारी हजूर रहमत कर। आपां इस शब्द की विचार कर रहे हैं, निंदा तेरी जो करे सो वंजै चूर। जेड़ा गुरु अंगद साहब जी की निंदिया करता है वो चूर चूर हो जाता है। नेड़ा दिसै मात लोग तुध सुझै दूर। दुनिया के लोगों को यह संसार बहुत नेड़े जापदा है, इवें लगता है जिवें यह संसार अपना ही है, पदार्थ अपने ने। जो मेरे को धन है मेरा ही उसके उपर कब्जा है। नेड़ा दिसै मात लोग तुध सुझै दूर, तुध अर्थ है तुहानूं, तुहानूं दूर की भी सोची है, परलोक के बारे भी पता है, दुनिया के होर ग्रहां के बारे भी पता है, शरीर का अंत हो जाने तो बाद अगली प्रक्रिया के बारे भी तुहानूं ज्ञान है। इसे करके महाराज कहते तू भी सीख लै, अगू दे जे चेती है तां कायत मिलै सजाए। नानक दृष्ट दीर्घ सुख पावै, सुरत शब्द मन माना। महाराज जी कहते ज्ञान की जदों तैनूं प्राप्ति होगी, तेरे कोल इन्नी सुंदर दृष्टि आ जाएगी, केवल वर्तमान के बारे नहीं सोचेगा, तू भविख के बारे भी सोचेगा। भविख के बारे सोच के रिजल्ट बारे सिट्टे के बारे जान के फिर कोई कार्य करेगा कि जिहड़ा काम मैं कर रहा इसका रिजल्ट की होगा। फिर तेरे कोलों गलती नहीं होगी, तेरे कोलों भुल नहीं होगी। तो गुरु अंगद साहब महाराज जी के कोल ये ज्ञान है जिस करके अगे के बारे पहला ही सोच लेंगे ने। नेड़ा जिसै मात लोग तुध सुझै दूर, फेर वसाया फेर वाण सतगुर खा दूर।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਪ ਹੈ, ਤਪ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਹੈ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪ ਵਸਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।